Okay, so this is the thing. I am going to share the slide share. Yes. Okay, so yesterday we have studied this the medium, which is known as your, what is that, relative permeability and absolute Absolute permeability. permeability. It is just like your electrostatic, that is permittivity. ठीक है. And in the permeability, absolute permeability, it is known as your 4.4 pi into 10 to the minus 7 Henry per meter. ठीक है. And absolute permeability, relative permeability is 1. Okay, right. Next, we'll be reading, just we'll go for some revision quick. Loss of what is that? Magnetic force. तो एक मैग्नेटिक फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? द पोल स्ट्रेंथ. Pole strength. Pole strength. पोल स्ट्रेंथ कितना उस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल सोल. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रेंथ होगा क्या सर। होगा? कम हो जाएगा. कम हो जी। And inversely proportional to the absolute permeability of the surrounding or medium. ये तुम लोग पढ़ चुके हो. This is the formula. What is that? F is directly proportional to M1 M2, means two pole strength, and it is inversely proportional to the square of the distance, and it is inversely proportional to the mu. So this is the formula. The force, magnetic force. This is the magnetic force. Okay. So these are the things. Next we'll be reading some of the terms which are used in magnetic circuit. The first term is magnetic field strength. क्या है? Magnetic field strength. And magnetic field strength we are writing in, what is that, capital H. It's Right. So remember this. It is your magnetic field strength. मतलब क्या है? जो मैग्नेट हम लिए हैं उसका फील्ड स्ट्रेंथ कितना है. Right. The magnetic field strength is that. So क्या है ये? क्या है? What do you mean by that? The magnetic field strength at any point within a magnetic field is numerically equal to the force experienced by north pole. North pole जितना force experience करेगा, that is known as your magnetic field strength or magnetic strength, or it is known as your strength of the magnet. है कि नहीं? इसीलिए yes हम sir. कहते हैं बड़ा ज्यादा पावरफुल मैग्नेट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि नहीं, और कम होगा तो उसका कम होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज, यूनिट क्या है उसका? न्यूटन पर वेबर. राइट. वाई? इट इज योर फोर्स. ठीक है. फोर्स मींस, फोर्स को हम मेजर करते हैं क्या? न्यूटन में. और डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसलिए वो आ जाता है क्या? न्यूटन पर वेबर. राइट. दिस इज नोन इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट. क्लियर? सो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. नेक्स्ट विल बी मूविंग टू अनदर, मैग्नेटिक पोटेंशियल. तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज दैट? नॉर्थ पोल साउथ पोल हम रखेंगे कि नहीं, तो उनका जो ये है उसको कहेंगे दिस इज योर मैग्नेटिक पोटेंशियल. मींस द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड is the measure of work done in shifting north pole of 1 Weber to infinity. Means infinity से वहां को लेके आने के लिए जितना हमको ये होगा, वर्क डन होगा, उसको कहेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल. लीव. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दिस. व्हाट इज दिस? व्हाट इज Flux दिस? per unit pole. फ्लक्स. Flux means the lines of force which is coming out of a magnet. ठीक है. मैग्नेट से जो लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं. और एक पोल, कितना पोल है मैग्नेट में? कितना पोल? टू पोल. Two poles. टू Two poles. पोल.
north pole, south pole. So what are the fluxes coming per pole? It is known as your flux per pole, right? And flux per pole is known as your symbol is phi. What is that symbol? Phi. 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 And it is known as your unit is known as your Weber. What is the unit? Weber. Weber. वेबर। जैसे तुम लोग को एनोलॉजी जानते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एनोलॉजी? हाँ, एनोलॉजी का मतलब है, हाँ, हम लोग जानते हैं कि नहीं, बचपन में हम पढ़ा था एनोलॉजी, एनोनिम्स, सेंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ा था कि नहीं? एनोनिम्स मीन्स, Yes. एंटोनिम्स मीन्स सेम, Same words. Antonym means सिनोनिम्स मीन्स Yes, same same words word, was same words, antonyms mean different words, but the here opposite word. opposite word. Here there is another term which we say analogy. Analogy means, अब देखो मैं एक सिस्टम में हूँ, दूसरा सिस्टम के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं तुम लोग को पहला चीज बोल रहा हूँ, हम पढ़े थे क्या इलेक्ट्रिसिटी की नहीं? इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होता है? क्या फ्लो होता है सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज current, करंट, ठीक है ना? Current. तो इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होगा? क्या फ्लो होगा? क्या Current ही flow होता है। क्या फ्लो होगा? अरे मैग्नेट रख के तुम लोग वायर जोड़ते हो, हाँ? एक मैग्नेट में रखा हूँ, एक अल्पिन लेके वहां पे आके रखा हूँ, तो वो जो खींचता है ना पिन को, तो वहां पे हमने वायर लगाया हुआ है। No sir. no sir, नो, No, sir. नो। सो हाउ इज फ्लोइंग? तो मैग्नेट में जो फ्लो होता है क्या होता है? फ्लक्स। अंडरस्टूड? magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे में दूसरा तुम लोग को एक एनालॉजी ऐसे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, ठीक है? तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या है? Current. क्या है? करंट, राइट? सो एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स इज Weber. Weber, right? So this is your flux per pole. एक पोल में कितना फ्लक्स दे रहा है उसको कहते हैं, right? Then we'll be talking about flux density. What is density? Mass per unit volume. मास पर यूनिट एरिया। तो अगर मास एरिया कम होगा, मास ज्यादा होगा, तो क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा होगा, नहीं तो कम होगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम कहते हैं बी। व्हाट इज दैट यूनिट? कैपिटल बी। क्या कहते हैं उसको? कैपिटल बी। Capital मीन B. कैपिटल बी, कितना फ्लक्स कितने एरिया में है। अंडरस्टूड? So it is your known as your phi by A. A. Phi by I A. by Phi is measured in Weber and A is measured in Meter Yes, square. sir. meter square. मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या नाम दे रहे हैं? दिस इज योर वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज नोन एज योर टेस्ला, Tesla. राइट? सो यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज नोन एज योर टेस्ला, ठीक है? इंडिया में टेस्ला कार आ गए हैं, जानते हो कि नहीं तुम लोग? Yes sir. हाँ? जी sir. Yes, हाँ, sir. Yes sir. तुम लोग चलाओगे आगे जाके, और गाड़ी में ड्राइवर्स का जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के चले जाना, ठीक है? राइट। तो दिस इज नोन एज योर टेस्ला। सिमिलरली मैं अगर पूछूंगा भाई करंट डेंसिटी क्या है, क्या बताएगा? कौन बताएगा? ये जो फ्लक्स I डेंसिटी, upon area. हाँ वेरी गुड, I इट by इज A. आई अपॉन एरिया। इसको आई बाई ए कहते हैं। यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा एम्पियर पर Ampere per meter square. Meter square. स्क्वायर। ये जब करंट का बात आता है तो उसको कहते हैं हम करंट डेंसिटी। जब फ्लक्स का बात आता है तो मैग्नेटिक सर्किट आता है तो हम उसको कहते हैं क्या?
फ्लक्स डेंसिटी एंड इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, अंडरस्टूड। सो Yes, sir. Yes, sir. अगर वैल्यू डाल देंगे तो 5/A and area is equal to pi r square, so we can say it is your Weber per meter square. Okay, understood, clear? The next thing will be reading that this is your absolute permeability and relative permeability का फॉर्मूला। तो हम अभी तक क्या पढ़े, हम पढ़े हैं H को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, नहीं, मैग्नेटिक, Magnetic field strength, sir. यस, दोनों अलग अलग फील्ड चीज है। स्ट्रेंथ, हाँ, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अभी हमने पढ़ा है बी, इसको कहते हैं क्या, फ्लक्स डेंसिटी। और Flux हम density. इसको जानते हैं म्यू, इट इज योर परमिएबिलिटी। अंडरस्टूड? So these three things are the relation between the three things is known as your mu is equal to B by H. What is that? Mu is equal to B by H. B by H. और ऐसे भी तुम लिख सकते हो B is equal to mu H। और ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, म्यू की जगह तुम लोग क्या डाल सकते हो, तुम लोग डाल सकते हो μ0 μr into H. So this formula we need to remember, that is B is equal to क्या, यहाँ पे हाँ μ0 H, right, mu H, B is equal to mu H, right, this is the thing. Okay, so this we need to know. और कुछ लाइन हमें चाहिए क्योंकि ये फार्मूला हम हर प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। ओके, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी तुम लोग जो बोले क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको कहते हैं हम कैपिटल आई। मतलब क्या है, एक मैग्नेट को लेके एक जगह पे रखता हूं तो वो कितना इंटेंसिटी में वो दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है, समझ रहे हो ना। मींस क्या, वो चुंबकीय उसका क्या क्षेत्र, दैट इज फील्ड, मींस चुंबकीय फील्ड मींस व्हाट इज दैट, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मींस जो हम मैग्नेट ले रहे हैं उसका कितना इंटेंसिटी है, उसका कितना प्रभाव है, इंटेंसिटी कितना है, राइट। सो दिस इज नोन एज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दो चीज अलग है, H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, और I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? It is defined as the edge induced in the pole strand developed per unit area of a bar magnet। एक यूनिट एरिया का बार मैग्नेट कितना क्या स्ट्रेंथ डेवलप करता है, राइट। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है, तुम लोग एक मैग्नेट लिए, ठीक है ना, और एक वहां पे एक छोटा सा यूनिट मैग्नेट लिए, हाँ, तो वो मैग्नेट जब लेके आते हो ना, वो ये घूमता है कि नहीं, डिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, देखे हो कभी, ये डिफ्लेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है ना, कितना डिफ्लेक्ट करेगा उसका उतना इंटेंसिटी है, राइट। सो उसको हम लेके भी उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज योर मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बार मैग्नेट। तो अगर हम दे देंगे यहाँ m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड बार मैग्नेट इन वेबर, तो उसका कैलकुलेशन है सिंपल, I इज इक्वल टू m बाई क्या a, I is equal to m by a. So we can say that this is also it is where m is your क्या, m is your magnetic pole strength and a is your area. So you can also write it the
magnetic field strength is intensity of magnetization I is equal to m by a। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मेरे पास I इंटू एम है, तो मेरा एक छोटा मैग्नेट है तो उसका m हो गया, l m हो गया, और एरिया क्या है, a है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे l मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको l मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को भी l मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जब l मल्टीप्लाई कर दिए वो क्या हो गया, ये बड़ा मोमेंट हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर वॉल्यूम, right? So intensity of magnetization is the magnetic moment per volume, means जो हम जब मैग्नेट रखते हैं तो एक छोटा मैग्नेट, जो मैग्नेटिक मटेरियल वो कितना घूमता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। सो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट पर वॉल्यूम इज नोन एज योर इंटेंसिटी ऑफ Magnetization. मैग्नेटाइजेशन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट अनदर गोइंग टू, दिस टर्म विल वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग को इसी टर्म में वो तुम लोग को पूछेगा, क्या पूछेगा, तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा, भाई यू टेल मी व्हाट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर ऑल वी नाउ, सो वी हैव स्टडीड बी एच एंड आई, पढ़े कि नहीं, हाँ, और हमारे पास क्या है, म्यू भी हम पढ़े। तो नाउ देयर इज ए रिलेशन, अनदर इज नोन एज योर ससेप्टेंस। क्या है, ससेप्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इट इज नोन एज योर क्या, Susceptance. ससेप्टेंस और susceptibility is defined as the ratio of intensity of magnetization. What is susceptibility? Susceptibility is the ratio of I by I by H. right? So this is known as your K. It is known as your K. Susceptibility is known as your K. Now we have what we know. हमको B पता है, हमको H पता है, हमको I पता है, हमको K पता है। Relation between all these है, इसको H में डिवाइड किया और इसको H में डिवाइड, ये क्या है, B by H is, what is your B by H? B by H is क्या है, Mu. Mu म्यू जीरो, एंड आई बाई एच क्या है, अभी हम पढ़े के, है कि नहीं, के रिलेशन Yes, sir. म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो प्लस, जानते हो तुम लोग, म्यू जानते हो, म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर, है कि नहीं, म्यू जीरो एंड के एंड म्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि do you know that different type of magnetic materials are there, जानते हो, पढ़े हो, 3 तरह का होता है, yes sir एरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड diamagnetic डायमैग्नेटिक का ये के वैल्यू पॉजिटिव है। फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या है, आयरन, निकल, कोबल, राइट, आयरन, निकल, कोबल and the alloys of nickel iron and cobalt iron, these are known as your ferromagnetic material. Similarly, your paramagnetic materials are like it aluminum are paramagnetic materials, and for bismuth are known as your diamagnetic material. तुम लोग कभी ये मैं कभी कभी देखे हो, मिलता है मार्केट में, अमेज़न में, वेरी हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट मिलता है। Yes, तो sir. उसको वो दोनों मैग्नेट को ऐसे जोड़ दोगे ना, वो आपस में टकरा के फूट जाएंगे, ऐसे भी मिलता है। तो छोटा छोटा मैग्नेट भी मिलता है अमेज़न में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से
वो मैग्नेट, वो कौन सा मैग्नेट है? वो है नेचुरल अवेलेबल मैग्नेट, उसको मिलता है, मगर वी कैन मेक इट ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट? ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच इज नोन एज व्हाट वी हैव नो फ्लक्स। फिर हम पढ़े बी, फिर हम पढ़े क्या? बी के बाद क्या बोलो? म्यू I sir. आई H is your flux, this is your intensity of magnetization, this is your susceptibility, right? So these are the things. Next I am going to tell you about some other part. अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे जो हमारा लॉ है। हमें जस्ट नॉलेज अबाउट द एम्पियर्स लॉ, ठीक है? क्योंकि हम कहाँ पे पढ़े एम्पियर्स लॉ? वी हैव स्टडीड इन योर, हाँ, वो कहता है आई, क्या कहता है एम्पियर्स लॉ? आइडियल साइन थीटा, कहता है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे देखो, मैं दिखा देता हूँ। जैसे टू लॉस आर देयर, वन इज योर एम्पियर्स लॉ एंड अनदर इज योर बायोट-सावर्त लॉ। सो एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट्स दैट, हाँ, for here you need to know what is your MMF. MMF क्या है? कौन बताएगा? हम लोग क्या जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में? ये वाला वोल्टेज को क्या कहते हैं हम? क्या कहते थे? EMF, electromotive force. Means मतलब क्या है? Force of flowing of electron. हाँ, फोर्स टू, इलेक्ट्रो को ढकेलने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसमें क्या आता है? इसको कहते हैं वोल्टेज। वहां पे क्या फ्लो होता था? क्या करंट होता था कि नहीं? Current. अब हम उसको Electron. लिख देंगे MMF। मतलब क्या है? हाँ Magnetic motive force. हाँ हाँ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो मैग्नेट जो फ्लो होता है फ्लक्स को, उसको एक बल चाहिए, वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और वो क्या फ्लो करेगा? Flux. क्या? फ्लक्स। Magnetic. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ जैसा है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? एमएमएफ MMF. जैसा ही है, एमएमएफ है। तो वहां पे हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड यहाँ पे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है? दैट इज नोन एज योर मैग्नेटोमोटिव। द करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ मींस, ये भाई ऐसा कहता है, सरफेस इंटीग्रल तुम लोग पढ़े हो Yes sir. प्लस टू में? यस सर, Yes sir. बीटेक में ही पढ़े। ऐसा है मीन, ये कहता है कि भाई, हाँ, ये कहता है whenever the law says MMF, कितना MMF? MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ around a closed path is equal to the current enclosed by the path. Mean एक क्या, एक क्लोज पाथ में कितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो उसको निकालने के लिए वो आएगा कितना? द, जिसमें जितना करंट है उतना आएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज योर, व्हाट इज दैट, सरफेस इंटीग्रल करके इसको करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लिख के इसको हम ऐसे डिनर वेक्टर्स H एंड DS करके उसको करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज रिलेटेड टू योर एम्पियर्स लॉ। और भी एम्पियर्स लॉ दो चीज कहता है, whenever two things, whenever carrying conductor and a solenoid, ठीक है? सोलोनॉइड का मतलब क्या है? ऐसे जो राउंड राउंड होता है ना, इसको कहते हैं कॉइल शेप। ऑयल को कहते हैं सोलोनॉइड। तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। हाँ, अगर यहाँ पे मेरा करंट जा रहा है कहाँ पे? एक कंडक्टर में, तो कितना मैग्नेटिक यहाँ पे इफेक्ट करेगा? लिखो, MMF is equal to force into distance, that is equal to I, ठीक है? तो ये जो एम्पियर्स लॉ डाल के इसको निकालने से
वो आता है I, राइट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर एम्पियर्स लॉ इन ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो कितना आएगा, उसका फॉर्मूला है N I by 2 पाई R। मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ Number of टर्न्स। turns. अगर मैं एक टर्न मारूं तो N का वैल्यू है 1। ऐसे मैं जितना टर्न मारता हूं उतना हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक होगा। फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा टर्न मारेंगे उतना मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और B, Yes, sir. अभी तो हम बात किए B इज इक्वल टू म्यू जीरो है कि नहीं, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला डाल दिया है, B इज इक्वल टू जीरो एच, तो आ गया, राइट। तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर, हाँ, एंड टू N I by 2 pi. So N is known as your this much Tesla. This is the further magnetic field strength. Similarly, coil में भी, अगर ये सोलेनॉइड कॉइल ने भी वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालता है, right? So these are the same thing which we can get it. तो वो क्या इक्वल टू N I by, and N is your number of turns and I is your current. So what amount H means क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितना मैग्नेट में फील्ड स्ट्रेंथ आएगा, मींस N into I, और जो कॉइल का लेंथ है उसको, दिस इज योर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो दिस इज इन एम्पियर्स लॉ में आता है। अभी बायोट-सावर्त लॉ क्या कहता है, तुम लोग पढ़े हो, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ साइन थीटा, पढ़े हो कि नहीं। अगर मेरा यहाँ पे एक कॉइल में करंट जा रहा है तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा कि नहीं, रहा है वो थीटा। सो हमें कितना मिलेगा, हमको H इज इक्वल टू डी एच मीन स्मॉल सेक्शन लेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना आएगा, तो दिस इज योर आईडीएल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मली ये हम हमारा बायोट-सावर्त लॉ है इन योर +2 लेवल, राइट। नेक्स्ट हम ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो है इलेक्ट्रिकल का चीज हम पे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब तुम लोग ये जानते हो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कि नहीं, ऑपोजिट एंड अट्रैक्शन जो होगा वो भी है, ये सब लोग हम तो पढ़ चुके हैं, राइट। सो वी डू नॉट रिक्वायर दिस। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, क्या है, हम क्या Magnetic पढ़ेंगे, circuit. मैग्नेटिक सर्किट में वी आर इंटरेस्टेड, राइट। सो वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट, राइट। सो विल बी डूइंग दैट। सो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, सो हियर वी हैव टेकन ए मैग्नेटिक, दिस इज योर मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉइल, हमने उसको कॉइल मार दी, ठीक है। और कॉइल का कितना नंबर ऑफ टर्न है, कितना है, n नंबर ऑफ टर्न। N number of turns. और यहाँ पे N हमने, number of turns. हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई करंट छोड़ दिए, और यहाँ पे वो आई करंट हमने उसमें अंदर आई करंट डाल दिया। अब ये बन गया तुम्हारा मैग्नेट कि नहीं। अब क्वेश्चन आएगा, भाई कितना मैग्नेट बना है, हाँ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेट। और ये क्या है, सोलेनॉइड है कि नहीं, हाँ, सोलेनॉइड। Yes, sir. हमारा Yes, sir. फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू N is the number of turn, I is the current flowing through that, and L is the length. और this is your N by L. N को हम कैसे मेजर करते हैं, टर्न में, ठीक है नहीं। I को कैसे मेजर करते हैं, I को Ampere. एम्पियर, एम्पियर। टर्न को कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ टर्न T, हाँ, AT। और लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, Meter. मीटर। तो N by L is known as your एम्पियर टर्न पर मीटर, समझ रहे हो। दिस इज योर एम्पियर टर्न per meter, means in a magnetic circuit, if you have taken a magnetic circuit,
then you have connected number of turns, and you are giving a current of I ampere, and the length of the magnetic field is length of the solenoid or coil is your L meter. Then what amount of magnetic field strength, वो कितना magnetic field strength देगा, कितना देगा, वो दे सकता है तुमको N into I by L. अब मान लो मैं I को बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, मैग्नेट और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगा कि नहीं? Yes, sir. तुम लोग कभी देखे हो मूवी में जो एक मैग्नेट का क्रेन आता है, जो तुम लोग को कार को ऐसे टच करता है तो पकड़ के उसको उठा के लेता है, फिर छोड़ देता है कि नहीं, देखे हो कभी, क्रशने Yes. के लिए? हाँ, तो वो मैग्नेट के ऊपर काम करता है। हम क्या करते हैं, करंट दे देते हैं, जब हम ज्यादा करंट देते हैं तो वो मैग्नेट बनता है, तो कार को ऐसे पकड़ लेता है और उसको उठा के हम लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वहां पे मैग्नेट करंट को ऑफ कर देंगे, हाँ, जीरो। सो क्या होता है, वो डिमैग्नेटाइज होता है, तो वही गिर जाता है, राइट। सो दिस इज द वर्किंग। तो अभी मैं पूछूंगा, भाई मैं तुम लोगों को एक मैग्नेट बनाने के लिए दूंगा, उसका फील्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ा सकते हो? Current को बढ़ा के. करंट सप्लाई करंट करके बढ़ाकर, करंट बढ़ाकर, और नहीं तो और कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ रोटेशन Yeah. सर। नंबर ऑफ टर्न को मार के भी तुम लोग ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम जानते हैं बी निकालेंगे, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। तो हम जानते हैं बी इज इक्वल टू म्यू एच, कि नहीं, और म्यू एच के जगह हमने डाल दिया म्यू जीरो म्यू आर, और एच के जगह ये पूरा वैल्यू डाल दिया, तो आ गया हमारा ये क्या, बी आ गया कि नहीं? हाँ, देखो क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ, एच हमें मालूम है, तो वहीं से हमने क्या लिख दिया, क्या लेके आया, बी, बी लेके आ गया। तो बी क्या हुआ, म्यू जीरो म्यू आर बाई इंटू एन आई बाई एल बाई ए, फाइव बाई ए। तो फाइव इज इक्वल टू बी इंटू बी इंटू ए। बी इंटू ए। हाँ, तो हो गया यहाँ पे बी इंटू ए मीन्स एरिया, जोड़ दो, ठीक है। तो अभी मैं पूछूंगा, भाई मुझे ये एक मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे है क्या, मेरे पास, तो क्या करेंगे, व्हाट टू डू with, so that we can get how much flux it is going to give. Understood? समझ में आ रहा है, how much flux Yes, it is sir. going to give, how much flux it is, B into A, and B we know, B we can derive from H, and finally we can tell this much of magnetic flux it is going to deliver, or this much of magnetic flux will be there. Clear? Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे देखो, वो ये जो न्यूमरेटर एन आई है कि नहीं, ये न्यूमरेटर एन आई को क्या कहते हैं हम, ये न्यूमरेटर एन आई को हम कहेंगे एमएमएफ, मैग्नेटाइजेशन जो है एन आई, वो चीज क्या करता है, वो उसका काम ही है मैग्नेटाइजिंग करना, किसको, मैग्नेट को। तो इसको कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अगर मैं पूछूंगा भाई मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना है, तो तुम लोग बोलना कि इट इज योर एन इंटू आई। I. यही रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं, एक कॉइल में मैग्नेट बना के लिए कितना टर्न मारे हो और कितना करंट दे रहे हो। तो द न्यूमरेटर पार्ट इज नोन एज योर क्या, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और हम तो पढ़े हैं करंट का हमने मेजर करते हैं एम्पियर में, और टर्न को मेजर करते हैं क्या, टी में। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एम्पियर टर्न। कि नहीं, दिस इज योर एम्पियर टर्न, राइट। तो अभी ये इसको हो गया एम्पियर टर्न एन आई, और नीचे वाला हिस्सा देखो, नीचे वाला हिस्सा क्या है, एल बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए, है कि नहीं, ये पूरा वाला नीचे वाला हिस्सा। तो Yes, sir. ये पूरा वाला हिस्सा को हम कहते हैं एस, क्या कहते हैं, एस।
एस का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एम्पियर टर्न क्या आ गया? एमएमएफ। एमएमएफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है? EMF. ईएमएफ। अब हम जो बात कर रहे हैं नीचे वाला हिस्से, Reluctance. रिलक्टेंस का मतलब क्या है? तुम लोग आज आज तो थोड़ा ठंड नहीं है, जब ठंड ज्यादा होता था 9 बजे क्लास करने के लिए तुम लोग क्या थोड़ा क्या रिलेक्टेंट होते हो कि नहीं? कि नहीं? Yes. यस। सो सिमिलरली रिलक्टेंस इज वो मैग्नेटिक मटेरियल, वो कितना फ्लक्स को अपने अंदर अलाउ करेगा, ठीक है ना? दैट इज नोन एज योर रिलक्टेंस। वो जैसे रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? It opposes To oppose the flow of electron. current. कितना फ्लो ऑफ oppose करेगा? करंट, हाँ, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। दो फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है उसको कहते हैं Reluctance. Reluctance. रिलक्टेंस। सो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस इज सेम एज योर इलेक्ट्रिकल सर्किट का Resistance. रेजिस्टेंस, ठीक है ना? तो अभी हमको मिल गया फ्लक्स इज इक्वल टू, हम क्या मारेंगे यहाँ पे? ऊपर का हिस्सा को हम लिखेंगे एमएमएफ MMF कि नहीं? upon नीचे का reluctance. हिस्से को हम क्या लिखेंगे? रिलक्टेंस कि नहीं? हाँ, Yes, समझ sir. रहे हो? तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू एफ बाई F upon S. तो अभी उसको हम इलेक्ट्रिकल में लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं वी इज आई इज इक्वल टू क्या लिखें? वी बाई V by R. हो गया कि नहीं? हाँ, इसको हम वी को कहते हैं ईएमएफ, यहाँ कहते हैं एमएमएफ। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ कहते हैं रिलक्टेंस, यहाँ कहते हैं करंट, यहाँ कहते हैं Flux. फ्लक्स। Magnetic कंपैरिजन flux. हो गया ना दोनों सर्किट का? Yes, sir. कि नहीं? जस्ट लाइक योर, मैं पूछूंगा भाई ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट में बताओ, तो क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा Amperes. ओम्स लॉ बताओगे तो तुम लोग क्या बोलते हो? V इज इक्वल टू क्या कहते हो? IR. IR करते हो। Yeah. ये कौन सा सर्किट का? इलेक्ट्रिकल सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट का. मैं पूछूंगा भाई तुम लोग मुझे मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ बताओ, तो MMF equal to flux into S. हाँ, एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स Flux इनटू into Reluctance. रिलक्टेंस। समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे याद रख देना भाई, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है करंट और रेजिस्टेंस है रिलक्टेंस, तो यहाँ पे फ्लक्स इनटू क्या रिलक्टेंस मिल के जो आएगा वो होगा एमएमएफ, ठीक है? तो ये फॉर्मूला का हमको बहुत जरूरत पड़ेगा। क्या? फ्लक्स इज इक्वल टू योर एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। Reluctance. राइट। सो रिलक्टेंस का मतलब हाउ मच योर रिलक्टेंस, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा, तो उसको कहते हैं रिलक्टेंस। जैसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसका अपोजिट क्या कहते हैं? Conductance. conductance. हाँ, रेजिस्टेंस का अपोजिट हम पढ़े थे कंडक्टेंस, मींस इट इज अलाउइंग द करंट टू फ्लो, कंडक्ट कर रहा है। इसीलिए ऐसे ही रिलक्टेंस क्या है मैग्नेटिक सर्किट में, और उसका अपोजिट है परमियंस। क्या है? वो परमिट दे रहा है भाई, जाओ तुम लोग फ्लक्स अंदर जाओ, उसको कहते हैं परमियंस। क्या? ठीक है ना? परमियंस, परमिट दे रहा है तुम लोग को, परमिट दे रहा है तो जाओ, ठीक है? तो रिलक्टेंस इज इक्वल टू, सपोज मैं पूछूंगा भाई रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या है? रिलक्टेंस इज इक्वल टू L बाई म्यू जीरो म्यू आर इंटू, जैसे हम पढ़े थे क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़े थे कि नहीं? हाँ, रो L by A. L by A. right. Similarly, this is known as your reluctance is equal to L by mu zero mu r A. Understood? So this is the two things. It happens in magnetic circuit, resistance circuit, and it happens in magnetic circuit. तो तुम लोग S निकाल सकते हो रिलक्टेंस कैसे? The length
divided by mu 0 और mu r into the area आ जाएगा, राइट कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। Yes, sir. हाँ, सर अटेंडेंस संतोष बोल रहा है कि नहीं? Yes, sir. अरे संतोष, अटेंडेंस डालने वक्त तो तुम छुप जाते हो, फिर बाद में बोलते हो, है कि नहीं? हाँ, तो देखो वहीं पे लिखा है करंट इज एमएमएफ ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस एंड फ्लक्स इज, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एमएमएफ बाय MMF by reluctance. रिलक्टेंस। अब लिटरली मीनिंग मालूम है तो हमको याद रखना, रिलक्टेंस का मतलब क्या है भाई? हम नहीं छोड़ेंगे फ्लक्स को, इसको मैग्नेटिक सर्किट, इसको कहते हैं हम रिलक्टेंस। खत्म। अब डेफिनेशन थोड़ा हम दिखेंगे। पहला डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। So what is that? मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मतलब क्या था? It is the force which drives the electron in the circuit, है कि नहीं? तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? It is drives or tends to drive the Magnetic circuit. Magnetic. flux through क्या? A magnetic circuit. मैग्नेटिक सर्किट। खत्म। एंड इट इज, तुम लोग आगे भी ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज सिमिलर टू क्या? सिमिलर टू Electromotive force. इन विच सर्किट? Electric circuit. Electric circuit. ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, राइट ना? सो दिस इज योर नॉन एज योर क्या? एमएम। अब मैं पूछूंगा भाई एमएम एम्पियर टर्न क्या है? एम्पियर टर्न क्या है? बात किए थे कि नहीं? एन इंटू I. एन आई, एम्पियर टर्न। एम्पियर मीन्स आई, टर्न मीन्स एन। तो ऐसे हम आई एन तो याद नहीं रख सकते, तो इजीली याद रखने के लिए वो एन आई कह रहा है। सो इजीली वी कैन रिमेम्बर एन इंटू आई, राइट? तो एम्पियर टर्न किसका यूनिट है? एमएमएफ का। and you can write it, ampere turn is n into I, and it is the unit of magnetic motive force, and it is number of turn in a magnetic circuit into and the current flowing through it. Okay, clear, right? बता सकते हैं हम कि नहीं? Yes, sir. right. नेक्स्ट है, अभी हम पढ़े थे क्या? रिलक्टेंस। अब तुम लोग को 2 मार्क में अब शॉर्ट नोट आएगा कि व्हाट इज रिलक्टेंस, तो क्या करोगे? सेम थिंग हमने तुम लोग को बोला था रेजिस्टेंस का, इट इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच अपोजेस द क्या? फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल और एनी मटेरियल, बढ़िया, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच अपोजेस Certain magnetic flux. creation of magnetic flux, which opposes the flux बना नहीं देगा, ठीक है ना? Recreation. तो it opposes the creation. Analogous, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, right? It is analogous to resistance in electrical circuit. तो एंड हमने उसको निकाला था, reluctance is equal to L by mu A, और म्यू का मतलब है L बाय म्यू 0 म्यू आर इंटू ए, और म्यू 0 का वैल्यू हमें मालूम है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, राइट? खत्म। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला? व्हाट इज दैट? परमियंस। परमियंस क्या है? हाँ, द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस मीन्स इट implies द रेडीनेस इन विच मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स विल डेवलप। मीन्स वो बोले भाई मैग्नेटिक सर्किट बनाओ, कम यू डेवलप द मैग्नेटिक सर्किट, तो उसको कहते हैं हम परमियंस, मीन परमिट दे रहा है, राइट? एंड इट इज एनालॉगस टू
Conductance. कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, रेजिस्टेंस में हम क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी, Resistivity. यहाँ पे क्या कहेंगे, रिलक्टिविटी, Tension. right? In resistance it is known as a specific resistance or resistivity, or it is in magnetic circuit it is known as a reluctivity. So these are the things. Next class we'll be reading some of the doing some problems related to this, but you just try to think ये ऐसे तुम लोग, हाँ वेरी गुड। तो दिमाग में थोड़ा उसको रखो, बाई हार्ट करने से दिमाग में नहीं रहेगा, थोड़ा उसको सोचना पड़ेगा क्या है ये, ठीक है। तो एज आवर स्टूडेंट्स आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस कि नहीं, तो इसका मतलब है अटेंडेंस डाल देंगे। यस सर। तो अभी मैं थोड़ा स्क्रीन ये कर रहा हूँ, तो अटेंडेंस निकाल रहा हूँ। तुम लोग को शायद भूख लग रहा है, Yes, sir. सर सही बात। क्या बना है आज, क्या बना है घर में तुम लोग का, खुशबू आ रहा है क्या, चिकन विकन बना है क्या? सर बिरयानी। गुरुवार है सर। किसका रे, हैं? किसका बिरयानी बना है? आ जाए हम सब दावत के लिए। So I am just calling the roll. Suprabhat Mandal, Aman Tapo, Present, sir. Ashan Raja, जैन सर। then Arun Kumar Soren, Present, sir. then Deepak Behra,